راشد یعقوب خان۔ آج میں موجود ہوں مظفر آباد آزاد کشمیر میں۔ آزاد کشمیر کی فضا آج پرجوش ہے، ولولہ ہے، اور ہر طرف ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے اور روشن مستقبل کی جھلک نمایاں محسوس کی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ وزیر اعظم پاکستان یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت ایک بڑی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر اعظم پاکستان نے اس تقریب میں خود شریک ہو کر اپنے دست مبارک سے ذہین طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ آج آزاد کشمیر اور مظفر آباد میں کیا ماحول ہے، اور آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی میں کے اندر جو آزاد کشمیر کی مختلف یونیورسٹیوں کے طالب علم یہاں تشریف لائے ہیں اور ان ذہین طلباء و طالبات نے لیپ ٹاپ وصول کیے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ آپ نے ہمارے ساتھ ہی جڑے رہنا ہے۔ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کو زیب گلو کر لے۔ تو یہ وہ علامہ اقبال کا خواب جو اشعار میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ محنت اور شبانہ روز محنت کے ذریعے ہم پاکستان کو ایک عظیم دنیا کے نقشے پر ایک عظیم مملکت بنانے کا فیصلہ کریں۔ اور میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مشکل ترین حالات میں ہمارے کشمیری بھائی اور بہن جو زندگی بسر کر رہے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، عظیم قربانیاں دی ہیں، آج بھی کشمیر کی وادی میں ان بے گناہوں کا خون بہہ رہا ہے، ان کی خون سے کشمیر کی وادی سرخ ہو چکی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتحاد، اتفاق اور محنت سے وہ دن آئے گا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، میری بات یاد رکھنا کہ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ زنجیریں کاٹنی ہیں، یہ بیڑیاں ہم نے ختم کرنی ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن آئے گا جب آپ کی محنت اور عظمت سے کشمیر بنے گا پاکستان، اور مقبوضہ کشمیر ضرور آزاد ہوگا۔ میں یہ اعلان کرنے آیا ہوں کہ میں انشاءاللہ بہت جلد یہاں پر دانش یونیورسٹی ٹیک فوکس انشاءاللہ آپ کے بنا کے دوں گا۔ اس شعر سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ اقبال کہتا یہ ہے کہ مسلمانوں اپنے آپ اندر اتحاد قائم کرو، اتفاق قائم کرو، یکسو ہو جاؤ۔ یکجہتی کے ذریعے ہم انشاءاللہ نہ صرف پاکستان کو عظیم بنائیں گے بلکہ کشمیریوں کو ان کا حق دلوائیں گے، جو ان کا حق ہے، ان کا بنیادی حق ہے، انشاءاللہ ان کو ملے گا انشاءاللہ۔ رانا مشہود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ اس سارے ویژن کے پیچھے رانا مشہود صاحب نے بڑا کام کیا ہے اور ان سے بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب، کیسا لگ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کہ جو جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے، جس طریقے سے آزاد کشمیر کا روشن مستقبل محسوس کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ٹیلنٹ پورے پاکستان میں ایک طرح کا ہی ٹیلنٹ ہے۔ بچے جو ہیں وہ موقع چاہتے ہیں آگے آنے کا، بچے چاہتے ہیں ان کو میرٹ کی بنیاد پر آگے آنے کا، ان کی قابلیت کی بنیاد پر موقع ملے۔ اور شہباز شریف صاحب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیشہ ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا، چاہے وہ پنجاب کے چیف منسٹر تھے، اور جب وفاق میں وہ آئے تو آج وہ تمام منصوبے جو انہوں نے پنجاب کے بچے اور بچیوں کے لیے شروع کیے تھے، اب پاکستان کے بچے اور بچیوں کے لیے لے کر آ رہے ہیں۔ اور یہی نوجوان پاکستان کا مستقبل ہیں۔ ان کو جب میرٹ اور قابلیت کی بنیاد پر، ان کی اپنی صلاحیت کی بنیاد پر آگے آنے کا موقع ملے گا تو یہ پاکستان کی ایک مضبوط بنیاد بھی رکھیں گے، اپنا مستقبل بھی بنائیں گے اور پاکستان کو بھی خوشحال کریں گے۔ اور خاص طور پر آزاد کشمیر کے بچے بچیاں جو ہیں، انہوں نے
آپ ان کو جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے دنیا میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہیں. تو ہمارا فوکس ہے پورا پاکستان کی یوتھ کو آگے لانے پہ. شہباز شریف صاحب کا فوکس ہے اور انشاءاللہ یہ کل کا پاکستان مستقبل جو ہے ہمارے سامنے ہے. ہمت بندھائیں گے ہم اونچی بھرو اڑان اے نوجوان ہو چلو آسمان. جی ناظرین، کشمیر کی بڑی جاندار آواز سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کریں گے. راجہ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان خود تشریف لائے اور آزاد کشمیر کے ان ذہین طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے؟ کتنی امید اب وابستہ ہو چکی ہے کشمیری نوجوانوں کی وزیر اعظم پاکستان سے؟ لیکن شکریہ جی، آپ کا گزارش ہے کہ یہ لیپ ٹاپ اسلام آباد بھی دے سکتے تھے، لیکن جو مظفر آباد میں ان کی آمد ہے یہ ایک خاص میسیج آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی اور مقبوضہ کشمیر کے لیے کہ حکومت پاکستان اور خاص طور پر موجودہ وزیر اعظم جو ہیں وہ کشمیر کے یوتھ کی ترقی کے لیے کس حد تک دلچسپی رکھتے ہیں، جس کا انہوں نے اپنے خطاب میں بھی اس کا اظہار کیا، جہاں یونیورسٹی کا اظہار کیا اور بہت ساری ایسی باتیں بتائیں کہ جس میں ہم اپنے اس کو بتا سکتے ہیں مخالفین کو جو بھارت کے ہیں. پیسہ ان کے پاس بہت ہے، لیکن جو محبت اخلاص جو حکومت پاکستان یا موجودہ وزیر اعظم یا ہماری جو جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ وہ جو جس کا اظہار کرتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے. تم ہو پاکستان. نازا یہ سرزمین. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ناصر جمال خٹک صاحب جو وائس چانسلر ہیں آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی میں. ان سے بات کرتے ہیں. ناصر صاحب کیا کہیں گے کہ کیسا لگ رہا ہے وزیر اعظم پاکستان آج خود تشریف لائے ہیں آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی میں، آپ میزبان بھی ہیں، کیسا لگ رہا ہے، کیا فیلنگز ہیں؟ اور آزاد کشمیر میں جو جوش و جذبہ میں دیکھ رہا ہوں، اس جوش و جذبے کو آپ کیا نام دیں گے؟ بہت بہت شکریہ. ہم اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں طلباء اور طالبات کے درمیان لیپ ٹاپ کی تقسیم کے لیے ہماری یونیورسٹی کو چنا گیا ہے. ہم اس پہ بہت خوش ہیں، ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں، مظفر آباد میں بھی گھومے ہیں، آج یونیورسٹی میں بھی دیکھا ہے. سارے لوگ بہت جوش و جذبے کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو ہمیں اس کی بڑی خوشی ہے اور خدا کرے کہ اسی طرح ہماری وزیر اعظم صاحب یوتھ کے افیئرز میں دلچسپی لیتے رہیں اور ان کو ڈیجیٹلی امپاور کرتے رہیں. ہو چلو آسمان. تم ہو پاکستان. رستہ دکھائیں. جی ناظرین، میرے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں جنہوں نے لیپ ٹاپ وصول بھی کیا ہے اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مہتاب رفیق. کیا کہیں گے، کیسا لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو لیپ ٹاپ دیا ہے؟ کیا فیل کر رہے ہیں؟ جی بالکل بہت اچھا لگ رہا ہے. ہم نے ویسے تو پہلے سنا ہی تھا کہ میرٹ کی بنیاد ہوتی ہے اور میرٹ پہ لیپ ٹاپ وغیرہ ملتے ہیں، آج دیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی فیلنگ ہے ہمارے لیے، ایک پراؤڈفل مومنٹ ہے، تو اس کو بالکل انجوائے کر رہے ہیں. جی ناظرین، بات ہو رہی ہے نوجوانوں سے، اسٹوڈنٹ سے، اور کچھ اسٹوڈنٹس میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام؟ میرا نام عتیق شفیق ہے. عتیق، آپ کہاں سے ہیں؟ میں مظفر آباد سے ہوں بیسیکلی، لیکن میرا جو تعلیم حاصل کر رہا ہوں میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے حاصل کر رہا ہوں. آج کیسا فیل کر رہے ہیں کہ لیپ ٹاپ آپ وصول کیا ہے، تو آپ کی فیلنگز کیا ہیں؟ میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. لیپ ٹاپ مجھے آلریڈی مل چکا ہوا، تو میں آج یہاں پہ صرف اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں وزیر اعظم صاحب سے. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کی کیا سکسیس سٹوری؟ سکسیس اسٹوری میری یہ ہے کہ میرے والد صاحب 2005 میں وفات پا چکے تھے، تو اس کے بعد ہماری والدہ نے بہت محنت کی اور ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے. تو ایف ایس سی تک تو تعلیم حاصل کر لی. اس کے بعد میرا جو داخلہ ہوا وہ میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہوا. تو سول انجینئرنگ کے لیے جو ہے لیپ ٹاپ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میرے پاس تو اتنے زیادہ اخراجات نہیں تھے کہ میں لیپ ٹاپ لے سکوں. تو اس طرح اگست 2023 میں مجھے پرائم منسٹر یوتھ لیپ ٹاپ اسکیم سے مجھے لیپ ٹاپ ملا. تو اسی کی وجہ سے میں یہاں پہ آیا ہوں وزیر اعظم صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام ایمن زبیر ہے اور میں جنڈالی سے ہوں اور میں یونیورسٹی آف پوئنٹ سے سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہی ہوں. اچھا، تو آپ نے بھی آج لیپ ٹاپ لیا ہے؟ جی الحمدللہ، میرا میرٹ پہ آج اپنا لیپ ٹاپ ریسیو کرنے آئی ہوں اور
اور میں شہباز شریف کے بہت شکر گزار ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں لیپ ٹاپ ایک بہت ضروری چیز ہے. تو تھینک یو پی ایم فار دس ایوارڈ. रास्ता दिखाएंगे हम, हिम्मत बंधाएंगे हम, ऊंची भरो उड़ान ऐ नौजवान, हो चूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान. जी नाज़रीन, एक और तालबा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम क्या अस्सलाम. नाम है आपका? एमन है मेरा नाम. आप किधर से हैं? मैं बेला नूरशा मुजफ्फराबाद से हूँ. पास से. आप को भी लैपटॉप आज मिला है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी आप लैपटॉप मिला. क्या फीलिंग्स हैं? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुद आके आपके साथ यहाँ तस्वीर भी बनाई, शफकत का हाथ भी रखा और लैपटॉप भी दिए. क्या जज्बे हैं आज? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और सबसे ज़्यादा मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आके अपने हाथों से लैपटॉप दिया. मेरी वालदा मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा खुश हैं कि मैं अपनी मेहनत पे, अपने टैलेंट बेस्ड, और दिस इज़ अ प्योरली मेरिट बेस्ड कि मैं अपने टैलेंट पे आगे आई हूँ. मुझे प्राइम मिनिस्टर अपने हाथ से लैपटॉप दे रहे हैं, मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है और मैं उनका सहारा बन रही हूँ, उनके ऊपर कोई बोझ नहीं बन रही हूँ. वो बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से. जी नाज़रीन, मेरे साथ कश्मीर की वो अजीम बेटियाँ मौजूद हैं, मीरपुर की बेटियाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद किया है. इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं कि आपकी ये दो बेटियाँ, इन्होंने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है, आपका नाम रोशन किया है. क्या आज आपके जज्बात हैं, फीलिंग्स क्या हैं? जी मुझे बहुत खुशी है. मुझे इतनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाज में, और मुझे मेरा फ़ख्र है ये बेटियाँ मेरी. जी तो क्या आप पैगाम देंगे पूरी कौम को? मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तालीम से बढ़ के कोई हुनर नहीं है. आप अपने बेटियों को तालीम का हुनर लाजमी दें और बच्चों को तालीम के हुनर से आप नवाजें. जिस तरीके से आपने अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है, कश्मीर का नाम रोशन किया है, आप पाकिस्तान की उम्मीद हैं, आप पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं. क्या कहेंगे आज इतनी बड़ी कामयाबी? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगी. अल्लाह ताला के शुक्र के बाद वालिदैन की अनथक मेहनत और दुआओं का नतीजा है कि आज हम लोग कामयाब हुए हैं. और मैं आज इस प्लेटफॉर्म से यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी वालिदैन किसी फाइनेंशियल क्राइसिस या किसी प्रेशर की वजह से अपनी बेटियों को तालीम नहीं देते, मैं इस प्लेटफॉर्म को ये यूज़ करके यही कहूँगी कि अपनी बेटियों को तालीम ज़रूरी दें. आप का क्या नाम? My name is Eman Zahid and currently I am doing MPhil in chemistry from Must University. एमन, आप की जो खुशी है उसको अगर मैं पूछना चाहूँ तो किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? I am speechless now. मैं कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि मुझे इतनी खुशी है कि मैं उसको अपने अल्फाजों में बयान ही नहीं कर पा रही. तो ये जो ख्वाब है आज उसकी अमली ताबीर हुई है, आपको लैपटॉप मिला है, तो ये खुशी किसके नाम करना चाहेंगे? ये खुशी डेफिनेटली मैं अपने वालिद साहब के नाम करना चाहूँगी जिनने हमेशा हर मैदान में हर जगह पे हमें सपोर्ट किया. देखें बिल्कुल ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद यहाँ पर लैपटॉप तकसीम करने आए और यहाँ पर तकरीबन इतने ज़्यादा आवाम को उन्होंने AI से जो टेक्नोलॉजी से मुतारफ़ करवाया. अब ये सिर्फ इन चंद बच्चों पर मुश्तमिल नहीं होगा, इनके ख़ानदानों से इसको फ़ायदा होगा, इनके ख़ानदान तरक्की करेंगे. डिजिटल दौर है आजकल फ्री लांसिंग का, उसके ज़रिए ये आज इनके ख़ानदानों को एम्पावर करके गए हैं टेक्नोलॉजी से वज़ीर-ए-आज़म. और वज़ीर-ए-आज़म ने जो आज बच्चों को जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, उनके लिए गार्ड ऑनर पेश किया, ये वज़ीर-ए-आज़म के लिए उन नौजवानों की हौसला अफजाई की है ताकि वो कल आने वाले दौर में मज़ीद मेहनत करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें. देखें, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मेरा मौक़िफ़ रखने का मौका दिया है. ठीक है, देखें आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का दौर है. ठीक है, और जो भी कौम टेक्नोलॉजी में पीछे रहेगी वो तरक्की नहीं कर सकेगी. ठीक है, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने खुद आकर यहाँ पर लैपटॉप स्कीम की, यानी कि बच्चों के दरमियान तकसीम किया. दीगर बच्चों को खुद मिलेंगे लैपटॉप. ठीक है, उससे वो क्या करेंगे, अपने टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेंगे. ठीक है, जिससे मुल्क की इकानमी भी आगे जाएगी और मुल्क तरक्की करेगा. मैं ये कहना चाहूँगा ये जो तकरीब आज़ाद कश्मीर में मुनक़्क़द की गई, ये एक बहुत अच्छी एक तकरीब रखी गई. वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये तलबा के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के जो बागयूर तालिब इल्म है वो गरीब घरानों से भी तलक रखते हैं और ये अफोर्ड नहीं कर सकते. और ये अच्छा स्टेप, एक मुस्बत स्टेप लाए के आना तलबा के लिए और उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करना और उन्हें ये लैपटॉप्स उनकी मेहनत पर गिव अवे करना, ये बहुत अच्छा इकदाम है. क्योंकि तलबा में एक ऐसा माहौल पैदा होता है कि वो स्टडी की तरफ जाते हैं और
पढ़ाई की तरफ जाते हैं, इसलिए उनमें एक टफ मुकाबला होता है जिससे एक अच्छे पढ़े लिखे और बायूर तालिब इल्म जो होते हैं वो आगे सामने आते हैं, जो आगे हमें कल रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी स्टेज पर। यहाँ पे वज़ीर आज़म हो सकते हैं, कल वो लड़के ये स्टूडेंट वज़ीर आज़म बन सकते हैं, AC DC या कहीं पे भी जो हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें वहाँ पे जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैंने आज जो है प्राइम मिनिस्टर यूथ जो प्रोग्राम लैपटॉप स्कीम में उसके ज़रिए लैपटॉप को रिसीव किया है। रही बात जज्बों की तो यही है कि हमने से पहले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के जो है इनिशिएटिव्स को सिर्फ टीवी पे ही देखा था। आज जब हम उनके सामने थे, मैंने पर्सनली उनसे जब रिसीव किया है तो वो एक अपने ही लेवल से जब उन्होंने कहा बेटा जीते रहो, तो इससे मुझे एक अलग ही मोटिवेशन मिली है कि मैं अपने जो फ्यूचर गोल्स हैं उन पे और मेहनत करूं। और ये चीज़ें कि इस तरह के जो इनिशिएटिव्स हैं ये हम लोगों को फर्दर मोटिवेट करते हैं कि हमें हमारी जो मेहनत है उसका फल मिल रहा है लगा हुआ, और कोई फाइनली कोई ऐसा बंदा है जो यूथ के बारे में सोचता है, उसे एम्पावर करता है। और इस तरह के इनिशिएटिव्स मैं कहता हूँ कि जो प्राइम मिनिस्टर का एक इनिशिएटिव है कि वो प्रमोट करते हैं इस तरह की चीज़ों को, ये काफ़ी अच्छा और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। नाज़ा ये सरज़मी है तुम पर इसे यकीन है, बन जाओ इसका मान ऐ नौजवान। सबसे पहले तो मैं प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का बहुत बेहद शुक्रिया अदा करूंगी कि ये जो एक प्लेटफॉर्म है, बेसिकली सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मेरिट की बुनियाद पे है, कि किसी के साथ कोई फेवरेटिज्म नहीं किया गया। बेसिकली इस लैपटॉप का जो मकसद है वो उन गरीब बच्चों के लिए जो कि ये लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते, बेसिकली ये उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं यही कहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतना बड़ी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप तमाम लोग जो है वो इक्वली बेसिस के ऊपर, मेरिट बेस के ऊपर आप तमाम लोग लैपटॉप्स ले रहे हैं। और इस लैपटॉप के ज़रिए हम लोग बेसिकली रिसर्च में तो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, बाकी इसके अलावा भी मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, AI के दौर में, आजकल के दौर में ये लैपटॉप हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। और मैं इस हवाले से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का बेहद शुक्रिया अदा करूँगी। आपकी आज फीलिंग्स क्या हैं, क्या जज्बे हैं? जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं अब बता नहीं सकती। हम लोगों ने कल ट्रैवल किया और PM साहब ने मुझे खुद अपने हाथों से अवार्ड दिया, उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैं अपनी फैमिली की पहली फर्द हूँ कि जिसने PM साहब से लैपटॉप लिया, और इस लैपटॉप को लेके मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक बात है, लेकिन ये बताएं कि जब आपको ये खबर मिली तो उस वक्त आपके जज्बे क्या थे, क्या एहसासात थे और वालिदैन क्या फील कर रहे थे? ये खबर मुझे तकरीबन फ्राइडे की रात को 9:30 बजे मिली। मेरे फोकल पर्सन ने मुझे मैसेज किया तो उस लिटरली में रोना स्टार्ट हो गई, और फिर उसी टाइम मैंने अपने पेरेंट्स को मैसेज फॉरवर्ड किया और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। 2016 में मुझे प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप अवार्ड हुआ था मेरिट पे, और अब मैं ग्रेटफुल हूँ, एक आनर महसूस कर, क्योंकि मेरे आज स्टूडेंट्स को भी जो है वो लैपटॉप रिसीव हुआ है, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो इनको दिया है लैपटॉप। ये मेरे लिए बहुत प्लेयर है और आनर का मुकाम। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूँ, मुझे उस वक्त लैपटॉप मिला था जब मेरे पास कंप्यूटर तक नहीं था, तो तब मैंने इसको यूटिलाइज़ किया और अपनी जो है अपनी सक्सेस हासिल किया। दिन में यही समझती हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं जो लोअर प्रिविलेज एरिया से आ रहे हैं, तो वहाँ से जो है ये बच्चे जो है इससे गेन करेंगे, खसूसन IT सेक्टर में ये नाम कमाएं। मैं यही मैसेज दूंगी कि आप भी पैशनेट रहें, मेहनत करें, बिल्कुल मेरिट बेस्ड आपका ये हम अप्लाई करते हैं, उसके बाद ये रिज़ल्ट भी हमारा मेरिट बेस्ड होता है, इसलिए हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। इंशाल्लाह अगर हमारे नसीब में लिखा है तो ज़रूर मिलेगा मेहनत का फल। मैं समझती हूँ कि ये मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए और मेरे गांव नीलम के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है कि मैंने मेरिट की बुनियाद पर लैपटॉप हासिल किया है, और मैं अपनी क्लास की वाहिद तुलबा हूँ जिसने मेरिट की बुनियाद पर इस लैपटॉप को हासिल किया है। मैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये हमें इस काबिल समझा कि उन्होंने हमारे लिए कुछ सोचा और हमें लैपटॉप से नवाजा। और प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम से हमें ये पता चलता है कि ये लैपटॉप महज एक लैपटॉप ही नहीं, बल्कि इससे ये यकीन दहानी हासिल होती है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मुल्क के लिए पुरअज़्म हैं और मुस्तकबिल के लिए भी एक दिल रखते हैं। आप क्या कहेंगी इस हवाले से, जो जोश और जज्बा आप देख रही हैं, जो मेरिट के हवाले से मेरिट को सलामी दी गई है, क्या कहेंगी? मुझे भी जब लैपटॉप मिला तो मतलब मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं भी यही है कि अपने वालिदैन का नाम रोशन करना चाहती हूँ। रास्ता दिखाएंगे हम, हिम्मत बढ़ाएंगे हम।
भरो उड़ान जो आज की तकरीब थी इस हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो डिजिटल लिटरेसी है ये तो तमाम जो डोमेन्स हैं उसके अंदर आप प्रिवेल कर रही है। आप एआई की बात करते हैं, बाकी जगहों की, तो उसमें जो बेसिक मशीन है या बेसिक जो इंटरफेस है वो डिजिटल इंटरफेस ही है। उसके लिए लैपटॉप बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारे पास छोटे गैजेट्स हैं मोबाइल्स या बाकी, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकती जो आप एक पूरे इंटरफेस के ऊपर पूरी चीज़ें लेके और मल्टीपल उसके इंटरफेसेस पे मल्टीपल चीज़ें सेम मशीन के ऊपर आप हैंडल कर रहे होते हैं। तो उसमें बेसिक एजुकेशन के हवाले से भी ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हम बात करते हैं इंटरप्रेन्योरशिप की, उसके अलावा जो कह लें कि वर्क फ्राम होम ग्लोबल मार्केट की, तो मैं समझता हूँ कि ये उस सिलसिले में एक बहुत ही की स्टेप है। सबसे पहले मैं पीएम शहबाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरे बायोमेडिकल डिपार्टमेंट में हमारी रिसर्च होती है, हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे सारे काम होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो सारे काम हमारे लैपटॉप में होते हैं। मैं जो एक गरीब मतलब हमारा जो तल्लक है एक उस अच्छे ख़ानदान से नहीं है कि ख़ुद लैपटॉप अफोर्ड कर सकें, तो मैं रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, प्रोजेक्ट का प्रपोजल रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता था। इंटरनल लास्ट मुझे दोस्तों के पास जाना पड़ता था कि एक रिपोर्ट्स जो 3 सफ़ात पे होती थी वो बनाने के लिए मुझे उनके पास जाना चाहता था। मैं पीएम शहबाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है। उनका एक ये लैपटॉप मशीन नहीं, उनका एक ये विजन है, अल्लाह पाक ने उनको बहुत दिया है, अल्लाह पाक उनको कामयाब करे। बहुत खुश हैं जो हुकूमत ने इक़दाम किए इस यूथ के लिए, आज़ाद कश्मीर की यूथ के लिए। मज़ीद हम ये रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कि वो यहाँ पे जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सहूलियात की कमी हमारे पसमानदा इलाकों में, खुसूसन एजुकेशन में, तो बाकी जो दूर दराज जाने वाली वर्किंग वूमेन होती हैं, जो पढ़ने वाली बच्ची, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है बिल्कुल। हमारी वुमेन्स को घंटों जो है सड़क में इंतज़ार करना पड़ता है, बाज़ दफ़ा वो ड्यूटी पे नहीं जा सकती टाइम पे। तो अगर वो इस तरह के इक़दाम करें कि यहाँ पे हमारे तमाम अज़ला में कम से कम 3-4 बसेस ऐसी हों जो सिर्फ वर्किंग वुमेन और पढ़ने वाली जो बच्चियाँ उनके लिए होनी चाहिए, इस तरह जो है हमारे काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं। जिस तरह उन्होंने पहले हमें लैपटॉप दिए तो हमें खुशी है इस बात की, और हमें यकीन है कि वो दोबारा हमारे लिए इक़दाम करेंगी इंशाल्लाह। आज का मुझे ये इवेंट बहुत अच्छा लगा है, और बेसिकली मैं एमफिल स्कॉलर मैथमेटिक्स की हूँ, तो मुझे ये जो है लैपटॉप बहुत ज़रूरी था। और ये जो मेरा ये जो है लैपटॉप, इससे मैं अपनी थीसिस कंप्लीट करूँगी एंड देन इंशाल्लाह पीआईटी के लिए भी अप्लाई करूँगी। ज़बरदस्त, आप हमारा फ़ख्र हैं, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबल है। और क्या कहेंगी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो इक़दाम आप लोगों के लिए उठाए हैं, इन इक़दाम को किस नज़र से आप देख रही हैं? कितने हौसले कश्मीरी नौजवानों के बुलंद? ये जो है हम लोगों के लिए नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ने ये जो स्कीम हम लोगों के लिए डेवलप की थी, इसमें हमें ये फ़ायदा हुआ कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते लैपटॉप या फिर स्कॉलरशिप्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और मतलब पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने स्कॉलरशिप और ये स्कीम के डेवलप मदद से उन्होंने इतना कुछ मतलब अचीव कर दिया कि आज वो अपनी थीसिस कंप्लीट कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाइयाँ कंप्लीट कर रहे हैं स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप की वजह से। थैंक यू सो मच टू प्राइम मिनिस्टर आल्सो, जिनने हमें ये मौका दिया कि हम ये लैपटॉप रिसीव करें और अपने फ्यूचर को आगे ब्राइट कर सकें, इसको यूज़ करें, और इससे हम बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ैज़ हो सकते हैं। इसके अलावा मेरे इलाके के जो लोग हैं जहाँ से मैं आई हूँ, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन होगी कि मैं वहाँ से यहाँ आके रही हूँ, मैंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से यहाँ आके लैपटॉप लिया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा सलीम है और मैं BS बायोटेक्नोलॉजी 7th सेमेस्टर से बिलोंग करती हूँ, और हम ये बेसिकली यहाँ पे हैं। और मैं PM पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह के प्लेटफॉर्म जो हैं यूथ के लिए इंट्रोड्यूस कराए, जिसके थ्रू आपको पता है कि आजकल दौर ही IT और टेक्नोलॉजी का है, जिसके थ्रू हम डिफरेंट इसको यूज़ कर सकते हैं। रिसर्च के अंदर, थीसिस कंप्लीट करने के अंदर, इवन कि असाइनमेंट कंप्लीट करने के अंदर हमें इस गैजेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऊंची भरो उड़ान ऐ नौजवान, हो झूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान। नाज़ा ये सरज़मीं है। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को ये उम्मीद दिलाता है कि आज़ाद कश्मीर के नौजवानों का रोशन मुस्तकबल है, और इस रोशन मुस्तकबल के हवाले से
जो इकदामात वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उठाए, लैपटॉप्स तकसीम करके, स्कॉलरशिप का ऐलान करके, दानिश यूनिवर्सिटी का ऐलान करके ये पैगाम दिया कि आज़ाद कश्मीर के नौजवानों को किसी भी सूरत तना नहीं छोड़ा जाएगा और उनकी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल में अहम इकदामात उठाए जाएंगे। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। नाज़ा ये सरज़मी है, तुम पर इसे यकीन है, बन जाओ इसका